Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I'm very grateful and honored to be here at Dabistan-e-Iqbal, to the grandson of the legend of all times, Sir Dr. Allama Iqbal's grandson, Iqbal Salahuddin, for inviting me. And this is probably one of the most memorable moments of my life, and I am a little nervous, I must admit that. And to Vice Chancellor of Government College University, Mr. Asghar Zaidi Sahab, who is an institution in himself, and he was a very dear student of my father, late Professor Dr. M.A. Hussain Malik. And he's following his rebellious footsteps, going against the tides, the way Professor Zafar Sahab mentioned, that within moments, he forgot about the red tapeism and he said, right now we are establishing a Kashmir society. So hats off to you for supporting the cause and for taking such a heroic gesture and then implementing it. And all these young students, they are Kashmiri freedom fighters, peaceful. I mention the word peaceful because that's what we need the most. And obviously Rai Muhammad Kharal Sahab, he is part and parcel of our team, of our family, and Garmi ho, Sardi ho, wherever we are, he's there. He leaves all his schedules and his commitments behind for the Kashmir cause. And to Ms. Sabeen Malik, she's my sister, she was also very excited to come here and visit Dabistan-e-Iqbal. And we are those incurable romantic people, which genes mein bhi aa gaya hai, and then falling in love with a freedom fighter and a man who's romantically in love with freedom, his romanticism and passion. And then thank you to Professor Zafar Sahab for organizing this entire event for us. I am grateful. You keep giving us beautiful gifts when we visit Lahore, in the form of Kashmir societies, in the form of art exhibitions, calendar exhibitions at NCA, and now over here. Coming to the main topic, I think Allama Iqbal के बारे में हम क्या कहें, हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि अपने अंदर कुछ, अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैं अपनी बात करूँगी, कि थोड़ा बहुत उनका एक एसेंस जो है, उनका जो एक इश्क था खुदा से, और जो उनके अंदर एक तड़प थी, एक जज्बा था, आई थिंक वो आई थिंक कुछ कर दिखाना है, या ज़िंदगी में कोई ऐसा गोल हो which is larger than life. आई थिंक कुछ मैंने जिस तरह पहले मेंशन किया, हमारे वालिदैन भी बड़े बागी किस्म की, एक घर में मेरी पैदाइश हुई और प्रोफेसर एजुकेशनिस्ट, लाइब्रेरी में आँख खुली, और फिर उसके बाद किस्मत कहाँ ले गई मुझे, और वो भी इस तरह अल्लामा इकबाल को ख्वाब आया था मुझे. When I met Yasin, I had a dream the next day that I'll be getting married to him, and my और उसमें कुछ एक spiritual element बहुत बड़ा था. मैं इतना डिस्क्लोज नहीं करती हूँ, मगर उसमें एक रूहानियत बहुत गहरी तरीके से बुज़ुर्गों की थी. एंड आई वाज शेल शॉक्ड. एक दिन हम मिले उनको जब जनरल मुशर्रफ का पीस प्रोसेस हो रहा था. आई वाज इन ओ लेवल्स एट दैट टाइम, एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो हम लोग पंजाब हाउस इस्लामाबाद में गए, और मेरी वालदा ने कहा एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है, पहली दफ़ा इस तरह वो लोग आ रहे हैं, तो यू मस्ट यू नो कंपनी में. मैं वहाँ गई और मैं बहुत शाय थी, और हम थोड़े बहुत लेट थे उस दिन, बड़ी डांट भी पड़ी अम्मी से, तो हमें बिल्कुल पीछे की सीट्स मिली, बिल्कुल एंड के अंदर, और यहाँ सारा मीडिया था. और मैंने इत्तेफाक से आई हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर, तो बिकॉज एग्ज़ाम से, तो हर वक्त मीडिया में तो ये लोग आए हुए थे, वीडियो एजुकेशन एंड जनरल मुशर्रफ एंड पीस प्रोसेस एंड एवरीथिंग. सो आई कुड जस्ट हेयर हिम रिसाइट द वर्सेस ऑफ फैज़ अहमद फैज़, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, लाजिम है कि हम भी देखें. उस पर उर्दू भी थोड़ी इतनी को ख़ास नहीं थी, अब काफ़ी बेहतर है. तो वो इतना एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मेरे हार्ट और मेरे सोल पे, जैसे किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक, ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह कभी हुआ है मेरे साथ. तो आई थिंक वो मेरी डेस्टिनी थी. तो मैं जैसे दीवानी हो गई उस आवाज़ की, और मैंने समझा आई हैव टू मीट दिस पर्सन. मुझे नज़र वो नहीं आ रहे थे. तो उसके बाद जब इवेंट ओवर हुआ, तो आई रैन टू हिज जहाँ वो बैठे हुए थे, एंड आई वाज लाइक, आई हैड अ पेपर एंड अ पेन, आई सेड प्लीज़ कुड आई गेट सम ऑटोग्राफ. एंड
And he looked at me and I looked at him and I was like, where am I? You know, totally lost. Not that I had no idea that he was single, he was married, or what. मुझे माइंड में था जैसे इनकी सारी फैमिली शहीद हो गई है, जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं बचपन से अखबारों में जो कुछ वहाँ पे हो रहा है. और फिर उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ दी और फिर मेरी वालदा क्योंकि PMLQ में थी, सीनियर CC की मेंबर थी, उनको भी उन्होंने इनवाइट किया कि 2 दिन के बाद हमारी एक सिग्नेचर कैंपेन है, 2.5 मिलियन सिग्नेचर्स वी आर कलेक्टिंग. मैं आपसे इसलिए शेयर ये कर रही हूँ और आपके साथ खास तौर पे कि ये कुछ चीज़ें अल्लाह चूज़ कर लेता है कभी किसी को किसी मिशन के लिए. कोई भी घड़ी हो सकती है, अभी भी हो सकती है, यहाँ पे जो बैठे हैं अल्लाह ने किससे क्या काम लेना है. मगर अगर आपके अंदर एक अर्ज भी साथ हो, पहले से एक थोड़ी बहुत हो कि मैंने एक वो टिपिकल रोबोटिक एक रूटीन वाली रिटोरिक लाइफ नहीं करनी कि अच्छी गाड़ी हो या अच्छा घर हो, अच्छी जॉब हो, मैंने हैव टू बी वेरी गुड लुकिंग, वेरी स्टाइलिश एंड यू हैव टू कम्पीट विद एवरीबडी, हैव टू get the most beautiful bride or groom or ये you know the typical excelling in your career, वो चीज़ें ठीक हैं. पर एक थोड़ी हट के एक जो एक मैडनेस कह दें या दीवानगी थोड़ी अगर वो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी ही हो तो कहीं ना कहीं फिर अल्लाह आपको ना जो लॉ ऑफ नेचर है वो आपको अट्रैक्ट करता और गाइड करने लग जाता है. और मुझे बचपन से ही एक बहुत ही प्यार था when I used to see the visuals of old Bollywood movies. कश्मीर दिखाया जाता था, श्रीनगर, एंड देन अम्मी की बातें बचपन में कि भी उनकी पप्पो की वहाँ शादी हुई थी आगा फैमिली में जिन्होंने एजुकेशन लेडी आगा ने इंट्रोड्यूस कराई थी. शी वाज डायरेक्टर एजुकेशन. तो साइकिल पे वो जाती थी क्योंकि जम्मू कश्मीर का यही कहते हैं कि लिटरेसी रेट उनका बहुत हाई है पार्टीशन से पहले का. तो बड़ी चीज़ें इंस्पायर करती थी. फिर फोटोग्राफ्स और फिर बचपन में पैसे इकट्ठे करने. वी वर इन अ प्राइवेट स्कूल वीकेंड हाउस पर कश्मीर फंड कलेक्ट किया जाता था. सो मी माय सिस्टर ब्रदर हम लोग जाते थे हर जगह पैसे इकट्ठे करने के लिए कश्मीर फंड. बट खैर वो एक और मोमेंट था. बट आहिस्ता आहिस्ता फिर जब अल्लाह ले आया और मैं वहाँ पे खुद गई और मैंने वहाँ पे खुद माइसुमा लाल चौक में वी लिव देयर विच इज़ यू नो द गाज़ा स्ट्रिप जिसे कहा जाता है, द लाल चौक, द ब्लडीएस्ट एरिया जहाँ पे सबसे बड़ी छावनीज होती हैं आर्मी की, पुलिस की. मैंने खुद जब वो सब कुछ देखा, वो वेलकम, द प्यार, एंड आई डोंट नो आफ्टर गेटिंग मैरिड टू यासीन आई हैड नो आइडिया दैट व्हेन आई लैंडेड देयर आई रियलाइज थ्रू द इंटरोगेशन जो हर दफ़ा मेरे साथ होती थी बिकॉज आई वॉज मैडली इन लव. जो होता ना अंधा बी फ्रीडम फाइटर, हुर्रियत लीडर, एंड यू नो व्हाट मोर कैन आई आस्क फॉर. I didn't want any rich man or any you know secure future. I just wanted someone extremely brave and revolutionary, and I was like wow, you know what a life I've entered. तो जब मैं वहाँ गई तो फिर जो मेरे साथ जो कुछ हुआ, क्योंकि मुझे तो आदत नहीं थी ना जेलों की या बॉडी सर्चेज या कोई कमेंट्स कस रहे हैं या कुछ ह्यूमिलिएट कर रहे हैं या किसी और कमरे में लेके जाके सवाल करना, are you an ISI agent, are you this or that or whatever. So I used to get a little scared. But they told me that you are the first Pakistani public figure in Indian occupied Jammu and Kashmir to live here. The Indians made me realize this. And I was like, what? You know, I never thought of that. I am his wife, he is the leader, he's leading a movement, and that's it. And I'm an artist. I have nothing to do with politics or coming. I was very shy. Even when I did my first talk show, I think I ran away 3-4 times. इतनी मैं इंट्रोवर्ट थी. बट आई थिंक लाइफ आपको ले आती है खुद ब खुद भी, और आपके अंदर भी कुछ थोड़ा कीड़ा हो कि मैंने कुछ करना है तो वो खुद ब खुद आपको अल्लाह गाइड करता है. तो यही बात हुई. अल्लामा इकबाल को जो ख्वाब आया था, मैं क्योंकि उन्हीं के साथ कनेक्ट करती हूँ विद मेरी आई थिंक 1947 से पीछे के जो दौर है, मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ. पार्टीशन की मूवमेंट जो इतने लोग शहीद हुए, क्योंकि मेरा क्लॉक वहीं पे चला गया है शादी के बाद स्पेशली. And their problems, how they were leading it, how the challenges they were facing. A lot of things are in common, dreams, spiritualism, and then you know divine force telling you to do this, to do that in some way or the other, और रास्ता बन जाता है. हालांकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में sorry to say जो यहाँ कल्चर है, यहाँ तो सिर्फ पावर में वही लोग आते हैं या उन्हीं लोगों की वाह होती है जो कि पैसा देते हैं मीडिया को, या गाड़ियाँ हैं या हराम का माल है या पता नहीं क्या है. कौन सी ये बुक रीडिंग तो यहाँ कल्चर है ही नहीं आपके लीडर्स के अंदर. आई एम सॉरी टू से यहाँ पे वो रिसर्च करना या प्रोफेसर्स इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठना या शायरी या कुछ
وہ آپ کو نہیں نظر آتا. کوئی اور اسپیچ لکھتا ہے, وہ پریکٹس کی جاتی ہے, اور پھر بہت 3-4 دفعہ مرر میں دیکھ کے پھر ایکسپریشنز ہوتے ہیں, پھر کیمرہ مینس کو اینگلس بتائے جاتے ہیں, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ گوز فارورڈ. دین یو ہیو دا PR ٹیمز, آل دیز پولیٹیکل پارٹیز. تو وہ جو ایک خود ایک نیچرل جو ایک ریولیوشن یا ایک ریبیل کہہ دیں یا ٹو گو گیٹس دا ٹائڈ, یہ آئی تھنک اللہ نے کوئی ہیلپ کیا ہے. میں تو بالکل ہی کسی کام کی نہیں ہوں, ناچیز ہوں, اور مجھے اللہ نے ایک بہت ہی بڑی ایک سیکرٹ ترین اسٹرگل میں ڈال دیا ہے, اور میں اس قابل بالکل بھی نہیں تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ میرا جو تھوڑا بہت جو میں کر سکتی ہوں, بکاز میں نے ان سے بھی جو باتیں کینڈیڈلی ابھی کی ہیں کہ آپ کی تو 50 سال سے اوپر ہو گیا آپ کے شملہ کو, اور اٹ ہیز بین این اٹر فیلئر بائیلیٹرلزم, جس کو 50 سال رگڑتے رہے ہیں, اس کی شیلف لائف بھی ایکسپائر ہو گئی ہے. تو یوتھ بھی یہی کہتا ہے بہت سا, جہاں بھی میں جاتی ہوں, I've been covering a lot of educational institutes within Pakistan. They keep telling me that why is, you know, the UN deaf and dumb and they never respond, دیکھ نہیں رہے, یہ نہیں وہ نہیں. تو میں ان کو بھی بتا رہی ہوتی ہوں کہ 50 سال پاکستان نے بائیلیٹرلزم کو دے دیا ہے, تو UN کی مائنڈ میں یہی تھا کہ ہم پیچھے بیٹھ کے ان کو آپس میں ٹیبل پہ لانے کی کوشش کریں گے. اس سے زیادہ ان کا کام آلموسٹ ختم ہو گیا تھا. یہ تو تھینکس ٹو مودی اور نو تھینکس ٹو مودی, آفٹر ابروگیشن آف Article 370 and 35A, what he has done is he has surpassed the UN resolutions, the bilateral treaties, international norms, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ they have even surpassed their own Indian constitution, because this was the only organ that was connecting the Indian constitution for administrative control with Kashmir or whatever. وہ بھی ختم کر دیا ہے. تو اس لیے اچانک چیزیں بالکل اسکوائر ون پر آ گئی ہیں, جہاں پہ اصل مسئلہ ہے ہمارا. تو ہم لوگوں کو اس وقت یہ کام کرنا چاہیے, ایک تو گورنمنٹ لیول پہ کم از کم چاہے کوئی بھی ریجیمز بدلیں 5 to 10 years کی تو ایٹ لیسٹ ایک کانسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے, جس کے اندر ہم UN کے اندر انگیج ہوں, UN میکنزم میں, ان کے ریپورٹرز, ان کے پروسیجرز, ان کی کمیٹیز. UN کا انوائے کشمیر کے لیے ہم نامنیٹ کروانے میں کامیاب ہوں. اس پہ ہمیں اپنے ٹارگیٹس تو سیٹ کرنے ہیں, شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم. اور اس کے اندر ایک تو آپشن ہے ICJ میں جانے کا, وار کرائمز, ایتھنک کلینزنگ کے اوپر, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا بھی ہے. بٹ اس کے لیے جب تک کہ ہمارے پاس ایک پراپر فل فلیج لیگل ٹیم نہیں ہوگی تو ہم اپنا کیس نہیں لڑ سکیں گے. وی ریئلی نیڈ another Iqbal and a Jinnah. I'm not just saying it to just praise those legends, but we desperately, the Kashmiris and even the Pakistani public needs some revolutionary کوئی آئے, مگر وہ ایسے نہیں کوئی ہوا میں آ جائیں گے, آپ لوگوں میں سے ہی آئیں گے. اور یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے جو کہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے جلسوں میں ہوتا ہے کہ جی آپ میں سے کوئی نکلیں گے, وہ کبھی بھی نہیں آنے دیں گے آپ لوگوں کو. یہ آپ کی بھول ہے. وہ صرف نعروں میں لگائیں گے, آپ کا ووٹ لیں گے, یا آپ کے لیے پریز کر دیں گے اور پھر بھول جائیں گے. آپ نے خود ہی اٹھنا ہے اس ملک کے لیے, اور پاکستان کے لیے اٹھنے کے لیے آئی تھنک سب سے جو مین جو فیکٹر ہے, اگر آپ کشمیر کے لیے اٹھ جائیں گے اور یہ چھوڑ دیں گے کہ جی آرمی کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے, گورنمنٹ جانے ان کا کام ہے, ہمارا کیا ہے, وہاں پہ ہو رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے تھوڑا بہت ہی کچھ کر لیتے ہیں, نہیں, یہ آپ پہ فرض ہے. یہ انہی کا جو پانی ہے جو آپ پیتے ہیں, جب تک یہ تحریک چل رہی ہے, یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا, تو ان کی خون کی وجہ سے آپ پی رہے ہیں نا. یہ جو لائٹ بھی آ رہی ہے آپ کے ملک میں, انڈسٹری بھی چل رہی ہے, میں سیلفش ریزنس پہ اگر آ رہی ہوں تو آپ 70 ایئرز ہو گئے, آپ ان کے خون پہ پانی پیتے ہیں, بجلی آتی ہے, آپ کا نیوکلیر بھی پانی سے چلتا ہے, آپ کی انڈسٹریز بھی اوور 57% آپ کی جو ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے, آپ ایگریکلچر اکانومی ہے. پھر آپ کی ڈیفینس لائن بھی وہی ہے, ہر چیز انہیں سے آتی ہے. پھر سی پیک بھی سلک روٹ نے بھی گزرنا ہے کشمیر سے. مطلب آپ دیکھ لیں نا کہ کتنی آپ کی سوشو اکنامک پیس کاسٹ کتنی اٹیچڈ ہیں ود دس ایشو, جو آئی تھنک سب سے بڑا آپ کا ایشو ہے. انہوں نے آپ کو اور ایشوز میں ڈالا ہوا ہے, کسی نے کرپشن میں ڈالا ہوا ہے, کسی نے غداری میں ڈالا ہوا ہے, کسی نے کچھ, مگر جو مین جو آپ کی فاؤنڈیشنز ہیں اس پہ تو کسی نے نہیں آپ کو فوکس کرنے دیا. تو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ آپ نلکے میں پانی نہ آ رہا ہو, پھر آپ جاگیں گے کہ ہائے ہم نے ایک گراس روٹ پہ اس ایشو کو لائیو ہی نہیں رکھا. یہ مجھے وہاں بھی جا کے لوگوں نے, کیونکہ وہاں کا یوتھ بہت زیادہ اویئر ہے اور کلوزلی واچ کرتا ہے کشمیر کا
पाकिस्तान के अंदर और इंडिया की और रीजन की पॉलिटिक्स को, क्योंकि उनका सर्वाइवल भी इसमें है, वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा उनका इंटेलेक्ट भी बहुत हाई है। ऐसे सर्कमस्टांसिस में आप सोचिए ना लिविंग, और कश्मीर सोसाइटी हमारी बहुत एक्टिव है, आप लोगों ने भी कुछ जर्नलिस्ट के इंटरव्यूज़ भी उनके साथ किए हैं जो शेयर हुए थे, और आप उनकी देख लें जिन हालात में वो रह रहे हैं, क्या उनका इंटेलेक्चुअलिज्म, क्या उनकी वेवलेंथ है, और क्या उनका काम है, और क्या उनकी सीरियसनेस है। वो इमोशनलिज्म के लोग नहीं हैं, वो बड़े रियलिस्टिक लोग हैं। तो आपने इसके ऊपर रिसर्च, अच्छी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस हों, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, रिसर्च पेपर्स हों, लॉ फेयर पे आप प्लीज़ काम करें, या जो आपकी फील्ड है, या कल्चर के थ्रू कश्मीरी हेरिटेज भी ख़त्म होता जा रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है। उसमें आपके भाई साहब ने भी, उनसे भी मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे भी ये बात किया था, उन्होंने कहा था हम इस पर काम करना चाह रहे हैं, क्राफ्ट एंड हेरिटेज, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, योर हेरिटेज। वो भी जिस तरीके से एलिमिनेट करके वहाँ पे भी हिंदुत्वा का नैरेटिव इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एंड जिस तरह हमदान्स का वहाँ पे आया कल्चर, इरानियंस का, और पूरा एक वहाँ पे इस्लाम कन्वर्ट किया उन्होंने इस्लाम में, और उनके जो आर्किटेक्चर वो भी कितना इंस्पायर्ड है ईरानियन आर्ट से, पेपर माशी और पोइट्री उनकी। तो ये बहुत सी चीज़ें जो है जिनको रिस्टोर करना है, सेव करना है, मगर इस वक्त जिस तरह पिछले स्पीकर्स ने भी बात की है कि आप लोगों ने एक ग्लिम्प्स देखी है एक लॉकडाउन की, ये भी आई थिंक तो अल्लाह का लॉ ऑफ नेचर होता है कि जब एक इंतहा आ जाती है फिर अल्लाह आ जाता है, अल्लाह सामने अपना दिखाता है जलवा दुनिया को कि तुम क्या हो, बड़े तुम लोग न्यूक्लियर हो, बड़े मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्स वेपन्स हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड है, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, कैसे पूरे दुनिया, चाहे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी इसके पीछे या नहीं थी, मगर एक दफ़ा दुनिया फ्रीज तो हुई है, कोलोसल लॉस हुआ है इकॉनमीज़ को दुनिया भर में, सामने आपके लव्ड वंस अभी थे, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। तो एक झलक आई है कश्मीर की 5 अगस्त के बाद, क्योंकि कोई एक्शन किसी ने लिया नहीं, ग्लोबली कंडेमनेशन तक रहे हैं। और आप इंडिया में इस वक्त देख रहे हैं, कहते हैं ना बाहर से दुश्मनी, मतलब बाहर से अगर कोई दुश्मनी कर रहा है उसका मुकाबला, पर अगर घर के अंदर ही आग लग जाए, घर के बहन भाई एक दूसरे को गले काटने लग जाए, तो वो हो रहा है इस वक्त इंडिया के अंदर, वी आर विटनेसिंग इट, और ये भी इट्स हिस्ट्री इन द मेकिंग। और एक तो वो हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ, एंटी माइनॉरिटी बिल्स, बांग्लादेशीज़ को लाखों में स्टेटलेस कर दिया गया, नेपाल का काला पानी को उन्होंने अपने मैप में डाल दिया इंडिया ने, वो भी नाराज़ हो गए। फिर उसके बाद लद्दाख का मामला आ गया, चाइना चढ़ गया। तो आप देख लें क्या क्या हो रहा है इंडिया के साथ, सब कुछ हुआ है 5 अगस्त के बाद। आई थिंक हम लोगों को भी अल्लाह के जो साइंस हैं उसको बहुत केयरफुली स्टडी भी करना चाहिए, और देखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। पाकिस्तान पे ना अजाब आ जाए, जिस तरह इकबाल सलाहुद्दीन साहब ने बात अभी की है, और ये अभी इन्होंने कम फटे हैं, ये तो एक लावा है अंदर, जो इस बैकग्राउंड के वो हैं, जो इनको शऊर है कि यहाँ हो क्या रहा है, और होता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं है। आप अपने टीवी चैनल्स ही देख लें, क्या कवरेज है उस इशू के ऊपर जो आपका ऑक्सीजन है। कश्मीरियों को छोड़ दें, वो भूखे प्यासे कफन बांध के भी उन्होंने तहरीक चलानी है, उनको नहीं शायद इतनी ज़रूरत जितनी आपको उनकी ज़रूरत है। आप तो एक दिन भी नहीं सर्वाइव करेंगे, एक दिन यहाँ लाइट गई है पूरे मुल्क में, क्या क्या हुआ है, परमानेंट हो जाए ये मामले तो फिर क्या होगा। आई थिंक वी नीड टू रियली एज अ नेशन वी नीड टू राइज अप, और इस पे चंदे प्लीज़ ना इकट्ठे करें, कश्मीर पे वहाँ कुछ भी नहीं जाएगा, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। चंदा माफिया नो टू एनीथिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स, वी नीड योर पीसफुल सपोर्ट। चाहे आप यूएन के अंदर, आप जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, आपने वहाँ पे ऑनलाइन पिटिशन्स भी की हैं, और यूएन के सेक्रेटरी जनरल, यूएन के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को आप ईमेल्स करें, लेटर्स लिखें, आप पीसफुल प्रोसेशंस करें। इसके ऊपर आप बड़े बड़े लोगों को इलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर इस मुल्क में, रेवोल्यूशंस उनके लिए आ जाती हैं, मगर आप इस सॉइल जो ये ड्राई होता जा रहा है आपका सॉइल, ये वो उन्हीं की वजह से है ना, अल्लाह की बात कश्मीर से आ रहा है, उनकी रेजिस्टेंस से। ये भी बोलती है ना ज़मीन, यहाँ पे बड़ा सब कहते हैं गो ग्रीन कैंपेन्स एंड प्लांटेशन एंड एवरीथिंग, मैं तो कहती हूँ हर चीज़ में कश्मीर है, पत्तों में, फूलों में, सब्जी में, आप कहाँ कहाँ नहीं, आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, जितना भी आप इसको बैक बर्नर पे कर लें। तो आई थिंक जिस जगह पर हम इस वक्त हैं, आई थिंक दबिस्तान इकबाल
यही वो लेजेंड्स हैं जिन्होंने रह जाना है. कोई नहीं होगा, जितने भी आपके प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स आ जाए, कोई नहीं, क्योंकि हिस्ट्री इज रूथलेस. वो वही याद रखती है जिसने कुछ किया है, इज्जत से उन्हीं को याद रखती है. तो आपको भी उसी सेक्शन में आना चाहिए, इंस्पायर्ड भी होना चाहिए और रिस्क भी लेना चाहिए. यू हैव टू शूट इन द डार्क, दैट्स व्हाट माय मदर सेज. हैज टू बी अ शॉट इन द डार्क. अंधा होना पड़ता है आपको जब आपने रिस्क लेना है, जब आप कन्विंस्ड हैं. आपने ये नहीं फिर देखना, आपने फिर वाकई में कुएं में छलांग मारनी होती है, मगर किसी और पागलपन में नहीं कि भी इश्क हो गया है किसी के साथ या क्या नाम है किसी को लीडर बनाना. नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी अगली जनरेशन्स के लिए. तो फिर अल्लाह ने आपको, मैंने क्या गाइड करना है, आपको अल्लाह ने खुद ही डायरेक्शन देनी है. और यही मेरा लाइफ का यही सीक्रेट है. और ये मैंने बहुत सीखा है यासीन से भी, एक तो मेरी वालदा से भी मैंने बहुत सीखा है और मैंने अपनी हस्बैंड से बहुत सीखा है. उनकी 25 इयर्स ऑलमोस्ट प्रिजन में उन्होंने गुजारी हैं. यहाँ वाले फैशन वाले प्रिजन्स नहीं हैं जहाँ पे आपको टीवी भी है, मूवीज देखते हैं, आप स्पोर्ट्स भी खेल लेते हैं, फिश भी खाते हैं, और फिर बाहर आके आप सब रोते हैं कि जी हमें जेल में डाल दिया. ये वो प्रिजन्स नहीं है, वो डेथ सेल्स में है. फिजिकल मेंटल टॉर्चर. और उनको पागल खाने में रखा गया था 2 साल आगरा के मेंटली रिटार्डेड 3rd डिग्री जो थे, और विदाउट क्लोथ्स एक नॉर्मल इंसान को when he was in his early 20s. इलेक्ट्रिक्यूट कितनी दफ़ा किया, जिस्म का एक एक हिस्सा उनका जो है वो गवाही देता है कि उन्होंने अपनी कौम के लिए क्या क्या. एंड ही वाज द पायनियर ऑफ द आर्म्ड स्ट्रगल. एंड देन व्हेन द वर्ल्ड कन्विंस्ड हिम, इंटेलेक्चुअल्स एंड प्रोफेसर्स फ्रॉम अब्रॉड, वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली, कि आप पुरअमन तहरीक चलाएं लाइक जिन्ना एंड लाइक गांधी, तो आपको दुनिया सुनेगी. मगर उसके बाद जब पुरअमन चलाई तो फिर और भी ज़्यादा जुल्म हुआ उनके साथ. But he didn't give up. He firmly believes in peaceful political resistance. Even if the occupation forces are fully loaded in shooter guns, pellets, and phosphorus shells, and rape is used as a weapon of war. So I think I learned from him that through sufferings, and through sufferings alone, you reach perfection. And what I learned from अल्लामा इकबाल, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ये भी एक फ्रीडम मूवमेंट है, उनकी जो एक रूहानियत थी, अल्लाह ताला के साथ जो कनेक्शन थी, जो मेडिटेशन थी, जो कश्फ था, या जो उनके अल्लाह के साथ जो उनका एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ था, और जो वो ड्राइविंग फोर्स थी उनको लेके जा रही थी आगे कि ये पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान मुल्क वजूद में आएगा. तो वही चीज़, वही फोर्स जो है वो, इट डजंट लेट मी डाई डाउन. एंड आई थिंक हम सब कनेक्ट कर सकते हैं विद दैट फोर्स. अगर हम थोड़ा सा अकेले में बैठे और देखें हम ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं. दिन से रात हो जाती है, अगला साल चढ़ जाता है, बड़े से बड़े हम होते जाते हैं, क्योंकि जितनी ज़िंदगी हमारे पास है वो भी हमने उसका भी जवाब देना है. जिस तरह जैदी साहब ने कहा कि हमने अपने अल्लाह के सामने जाना है. और अगर हम यंग एज से ये चीज़ अपने अंदर डाल दें कि हमने मरना है, ये टेम्परेरी टाइम है, हम कुछ ना कुछ इसको दिए जाए, ज़िंदगी को, अगली जनरेशन कुछ ना कुछ ही दे जाए, तो फिर हमें अल्लाह की हेल्प आती है. आखिर में मैं एक छोटी सी, मैंने एक पोएम, मैंने कहा मैं यहाँ पर आई हूँ एक से मैं विद योर परमिशन, वॉयज ऑफ द हार्ट. The lamp that lifts you, who knows when it will suddenly decease. The voyage of life, stoning alone, may now suppress no more the wild unrest. Life is walking on cut glass till the Shamadan flickers no more. Yet the doors to death cells, asylums, prisons, curfews cannot subdue my manic state. Mocks, wails, laments, teases, allusions they say. Ask them, have they seen the sightless sea? At the glance of sun, a storm begins to grow. Who can but bury the sky under their eyes? Principles of liberty are left for the soulless. These cages lock the human flesh. Let the human soul sing and caress.
The flag, a mere cloth, has marked our hearts. Who to call, who to listen. Majnu, Majnu, and nothing else. Mock her, steal her honor, stone her. It is beauty and the empire of beauty, from where poetry dwells. Let the water of Dal seep you in, like God's beauty falling upon beauty. And the last verses are for all the martyrs, the beautiful people that we lost in this struggle of freedom over decades. These roses, these blossoms, these roses, these blossoms are also the blood of the martyrs. We may live or not, Vishal. They will always blossom, but never blossom. Thank you.